Assalamu alaikum students, hope you all are fine and enjoying your studies at home. You are listening to your chemistry teacher Miss Ana Islam, and today we are going to study about chapter number 6 solutions. Page number of your book is 112 for 9th class for Federal Board. Our topic is molarity. What is molarity and how we can find the molarity of a solution, and which type of measures we have to keep in mind to calculate the molarity, how we can convert the given mass in moles, and how we can find out the solute of a solution or the volume of a given solution from the molarity and number of moles. So, when you have ever seen in the lab that on the bottle of concentrated sulfuric acid, 98 percentage is written over there, and it means the molarity, the concentration of the solute, that is our sulfuric acid, is 98, and in 18 molarity it means that 18 moles of hydrochloric acid, your sulfuric acid, and each dm cube of solution. Similarly, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को देखें 37% एंड 12.1 एम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बॉटल पर अक्सर आपने लिखा हुआ देखा होगा. इसका मतलब है कि 12.1 मोल्स जो हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के वो ईच डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में मौजूद हैं. So, हम कैसे we can express the concentration in term of moles of the solute and given volume of solution. Molarity is the concentration unit in which amount of solute is expressed in number of moles of quantity of solution in dm cube. मतलब जो आपको नंबर ऑफ़ मोल्स दिए गए हैं, जब उन्हें हम डिवाइड करेंगे गिवन वॉल्यूम से, जितनी भी क्वांटिटी आपको सॉल्वेंट की दी गई है, दैट इज़ योर मोलारिटी. ओके, मैथमेटिकली आप देख सकते हैं, इस लाइन को अंडरलाइन करें जो बोल्ड हुई हुई है बेटा, दैट नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन. अब प्रॉब्लम की तरफ आते हैं. यहाँ पर सॉल्व प्रॉब्लम है दैट यूरिया डाई अमाइन कार्बोनाइल इज़ द केमिकल नेम ऑफ यूरिया. और आप देख सकते हैं इसमें डाई अमाइन मतलब दो अमाइन के ग्रुप हैं, NH2 दोनों साइड से, और कार्बोनाइल सेंटर में इज़ अ वाइट सॉलिड यूज्ड एज अ फर्टिलाइज़र. आपने देखा होगा यूरिया को एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है एंड स्टार्टिंग मटेरियल है बहुत सी सिंथेटिक प्लास्टिक के लिए. अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम्स डिज़ोल्व इन. यूरिया कितना हमें दिया गया है 40 ग्राम्स, और कितने में डिज़ोल्व हुआ हुआ है 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन. कैलकुलेट द मोलारिटी. मोलारिटी हमें बतानी है. सो जैसा कि हमारी स्टैंडर्ड डेफिनेशन में बताया गया है कि मोलारिटी रिक्वायर्ड द नंबर ऑफ मोल्स नॉट द मास इन ग्राम्स. हमें हमेशा मोलारिटी के लिए मोल्स में मास चाहिए, ग्राम्स में नहीं. और डीएम क्यूब में सॉल्यूशन का मास चाहिए या सॉल्वेंट का मास चाहिए, नॉट इन सेंटीमीटर क्यूब और एनी अदर यूनिट. सो वी विल फर्स्ट कन्वर्ट द 40 ग्राम्स इनटू व्हाट, इनटू आवर 40 ग्राम्स इनटू नंबर ऑफ द मोल्स. ओके, पहले हम इसका मोलर मास मालूम करेंगे, दैट इज़ 60 ग्राम पर मोल. आप देख सकते हैं स्ट्रैटेजी यहाँ पर 14 + 1 × 2 + 12 + 16 + 14 + 1 × 2 and 40 divided by 60, we will get 0.667 moles. So now we will first convert the grams mass into moles mass, and then we are converting volume of solution into what, dm cube, centimeter cube into dm cube. Very simple, we will simply divide it by 1000. So here 500 divided by 1000, we will get 0.5 dm cube. Molarity is equal to number of moles of solute divided by dm cube of solution. We will get 0.667 divided by 0.5, and we will get 1.334 molarity. So यूरिया अगर आप ले 40 ग्राम्स और डिज़ोल्व करें 5.8 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशंस में, सेंटीमीटर की ऑफ सोल्यूशन में, वी विल गेट वॉट 1.334 मोलारिटी. अब एग्जाम्पल पर आ जाते हैं हम. 6.1 कैलकुलेट द मोलारिटी फ्रॉम द मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन. ओके, फ्रॉम दिस पेज you can see molarity is equal to moles of solute and 1 dm cube is equal to 1 liter of the solution. Here you can see, okay, solid and solvent amount is not fixed. हम कितनी भी अमाउंट सॉलिड की ले सकते हैं, सॉल्वेंट की ले सकते हैं, and it can be keep on changing. Okay,
here you can see the amount of the solute can be changed in moles and volume of the solution can be changed in liters. Okay, and in this one again you can remember N by V. If you want to remember the molarity, you can remember by this number of moles by volume of the solution. Now here again on your page एग्जाम्पल की तरफ आते हैं. हमें इसमें पोटेशियम पर मैग्नेट दैट इज़ योर केमिकली पिंकी. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग one. This chemical is a very beautiful dark blue black compound, and it's look awesome, and it is dissolved in water and it will give you a bright purple solution, and which is used as a disinfectant in water tanks में हम इसे यूज़ करते हैं. और ये क्वेश्चन आ चुका है. केमिकली द पिंकी इज़ दैट इज़ योर पोटेशियम परमैंगनेट एंड इट्स केमिकल फार्मूला इज़ KMnO4. इसके हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं 0.05 एंड 600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन. सो वी हैव टू कैलकुलेट इट. सो नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए गए हैं तो हम इसे कन्वर्ट नहीं करेंगे. अगर ग्राम में होते तो हम मोल्स में कन्वर्ट करते. और वॉल्यूम जो है येस इट इज़ गिवन इन सेंटीमीटर क्यूब, so we have to convert it into the dm cube. So we will get 0.6 dm cube, and when we divide the number of moles by dm cube of a solution, we can see that in this one 0.05 by 0.6 and we will get 0.083 m. It's very simple. नंबर ऑफ़ मोल्स आपको दिए जाएंगे, आपने डिवाइड करना है जो वॉल्यूम आपको दिया जाए. अगर हम नंबर ऑफ़ मोल्स नहीं दिए गए तो ग्राम में वहाँ से फर्स्ट वी विल कन्वर्ट इट इनटू द नंबर ऑफ़ मोल्स बाय डिज़ोल्विंग इट. ओके, नाउ सेल्फ असेसमेंट 6.4 हम बाद में सॉल्व करेंगे. पहले हम आ जाते हैं एग्जाम्पल की तरफ. एग्जाम्पल इज 6.2 कन्वर्टिंग मोलारिटी ऑफ अ सोल्यूशन एंड इट्स कंसनट्रेशन इन ग्राम पर dm क्यूब. सो एक फ्लास्क आपको दिया गया है जिसकी मोलारिटी 0.25 है. सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन पर dm क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन. सो इन द सेकंड पेज यू कैन सी मोलारिटी हैज़ बिन गिवन. मोलारिटी आपको दी गई है, नंबर ऑफ़ मोल्स आपको दिए गए हैं, वॉल्यूम दिया गया है. तो आपको क्या करना है इसमें से मालूम कर क्या करना है, मास मालूम करना है आपको. ठीक है, पहले आप नंबर ऑफ़ सोल्यूट मोल्स मीन्स मालूम करेंगे और इसका मोलर मास आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमेशा के लिए याद कर लीजिए दैट इज़ 40 ग्राम पर मोल. मास ऑफ द सोल्यूट हम पुट करेंगे एंड विच विल बी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सोल्यूट ग्राम पर मोल. 0.25 moles is equal to mass of sodium hydroxide divided by 40 gram per mole. Mass of sodium hydroxide is equal to 0.25 moles into 40 and we will get 10 gram. So this is your calculated answer और ये एग्जाम्पल आपकी बुक में हुई है. अब आप आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 6.3 पर. कन्वर्टिंग कंसनट्रेशन इन ग्राम पर dm क्यूब इंटू मोलारिटी. ओके, ग्राम पर dm क्यूब में आपको कंसनट्रेशन दी गई है, आपने इसे मोलारिटी में कन्वर्ट करना है. तो आप देखते हैं कि किसकी कंसनट्रेशन दी गई है. दैट इज़ योर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज़ मैन्युफैक्चरिंग और शेविंग क्रीम्स, पेंट्स एंड वार्निशेस वगैरह में यूज़ होता है ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोल्यूशन बाय डिज़ोल्विंग. ये बेटा यहाँ पर एक छोटी सी गलती है. दिस इज़ योर 5.6 नॉट योर 5.8 ग्राम. इसको करेक्ट कर लें बुक में. दिस इज़ योर 5.6 grams ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड in 1 dm cube of solution. Calculate the molarity of this solution. To calculate the molarity you need what? Moles of solute per dm cube of solution. Moles of solute are not given but mass of solute per dm cube of solution is given. Convert mass of solute into moles by using its molar mass. ठीक है, फर्स्ट हम 5.6 ग्राम्स, ठीक है, ये आपको दिया गया है और मोलर मास कितना होगा इसका 56 ग्राम पर मोल. तो मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब हम मालूम करेंगे दैट इज़ योर व्हाट. मोल्स मालूम करने का क्या फार्मूला है. दिस इज़ योर मास ऑफ द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गिवन मास जो है एंड डिवाइडेड बाय मोलर मास. ये हमेशा के लिए बेटा याद कर लें. नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करने का फार्मूला है गिवन मास जो आपको दिया गया हो दैट इज़ डिवाइडेड बाय मोलर मास. जो भी उस कंपाउंड का केमिकल का जो भी मोलर मास है उससे जब हम उसके गिवन मास को डिवाइड करेंगे what will happen, we will get the moles of the solution. The solution contains 0.1 mole of potassium hydroxide in 1 dm cube of solution. So molarity of the solution is 0.1 molar. Okay, now यहाँ पर आप देखें 6.5 सेल्फ असेसमेंट जो मैंने आपको कहा
So this is again your 6.5. So this is the solution of your 6.5 self assessment. सो ए में आपको कहा गया है कि 1.5 मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड डिजॉल्व इन 250. वही बात हो रही है जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए गए हैं 250 सेंटीमीटर क्यूब को हम डिवाइड करेंगे पहले 1000 से एंड वी विल कन्वर्ट दैम इनटू डीएम क्यूब. डीएम क्यूब में करेंगे तो दिस इज़ योर 0.25 डीएम क्यूब एंड नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1.5 मोल्स. मोलारिटी को 1.5 डिवाइड करेंगे 0.25 से विल गेट 6 मोलारिटी. अगेन इन द सेकेंड बी पार्ट में आप देखें 1.25 मोल मतलब आपको वॉल्यूम दिया गया है 75 ग्राम्स आपको क्या दिए गए हैं कंपाउंड के और 75 ग्राम्स आपको मास दिया गया है. इसको फर्स्ट वी विल कन्वर्ट इनटू मास. ठीक है. मोलर मास ऑफ सोल्यूट पोटेशियम क्लोरेट इस मालूम करेंगे 122.5. सो पहले हम इसे नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे. इट विल बी डिवाइडेड कितना गया है 75 डिवाइडेड बाय 122.5 एंड इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 एंड डिवाइडेड बाय 12.5. ओके 1250 1.25 डीएम क्यूब आपको सोल्यूशन दिया गया है और आप जब इसको मालूम करेंगे तो इट विल बी 0.49 सेंटीमीटर मोलारिटी. सी में what is the molarity of a 5 sample of potassium solution chlorate yield 0.2 grams reduced after evaporation of water. chlorate की वही 0.25 ग्राम्स आपको दिए गए हैं और इसमें भी अगेन आपने मोलारिटी कैसे मालूम करनी है कि mass of the solute divided by the molar mass and multiply by 1000 and to the volume of the solution. ठीक. जो आपको सोल्यूशन दिया गया है 50 सेंटीमीटर क्यूब. अब जब आप इसे फाइंड आउट करेंगे सो यू विल गेट व्हाट 0.05 मोलारिटी. दिस इज़ इट फॉर